Hello students, how are you? I hope you are all fine at homes. And students, welcome to Science Online Classes, Class 10 CBSE, Chapter number 12. Chapter name is Electricity. Students, in this chapter we have studied some topics of this chapter and have solved some numericals. Uh, and in today's class we are going to discuss further topics. Our first topic of this class is practical applications of heating effect of electric current. The generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. In electric circuit, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric roaster, electric oven, electric kettle, and electric heater are some of the familiar devices based on the Joule's heating. Means जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके जब वो फ्लो होता है उसको फ्लो कराया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को वायर्स के थ्रू. तो क्या होता है वो हीटिंग इफेक्ट रखता है अपने साथ में. अगर ज़्यादा लोड पड़ जाता है वायर पे तो वायर गर्म हो जाता है और वो उसके जो कवर किए हुए रहता है प्लास्टिक या रबर वायर को वो कई बार पिघल जाता है. तो वो हीटिंग इफेक्ट होता है. तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और बहुत सारे उनको यूज भी किया जाता है. उसका जो हीटिंग इफेक्ट है उसको हम यूज में भी लेते हैं. वो कौन कौन से अगर हम डिवाइस की बात करें तो किस किस में इस हीटिंग इफेक्ट को यूज में लेते हैं. वो है लॉन्ड्री आयरन हो गई. मीन्स जब वो गर्म हो जाती है तब हम जो कपड़ों पर आयरन करते हैं. ब्रेड टोस्टर हो गया, ब्रेड को सेकने वाला टोस्टर जो होता है. ओवन हो गया जिसमें खाना गर्म करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही वो गर्म हो करता है खाने को. और इलेक्ट्रिक केटल हो गई और इलेक्ट्रिक हीटर जो कि फैमिली डिवाइसेस है जिनको कि हम आसपास देख सकते हैं. द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज्ड is also used to produce light as in an electric bulb. Here the filament must retain as much of the heating generated as is possible so that it gets very hot and emit lights. It must not melt at such high temperature. A strong metal with high melting point such as tungsten melting point is 3380 degrees centigrade is used for making bulb filaments. The filaments should be thermally isolated as much as possible using insulating supports, etc. The bulbs are usually filled with chemical inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament. Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. Means क्या होता है कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लाइट को इमिट करने लगता है. और इसका अगर हम एग्जांपल ले तो एक एग्जांपल किसका ले सकते हैं हम एलईडी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका एग्जांपल ले लेते हैं. जो वो जो हमें लाइट प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक बल्ब. तो उसमें क्या होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है. मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघलता है. पर हम जब उस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जब बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होकर चमकने लगता है. तो वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता उस इलेक्ट्रिक करंट से और वो चमकने लगता है. और उसके बल्ब के अंदर कुछ अक्रिय गैस जो इनएक्टिव गैसेज है वो फिल की हुई रहती है जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑर्गन हो गई, ताकि वो फिलामेंट पे कुछ भी जंग वगैरह ना लगने दे, उसको बेकार ना होने दे, उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज कर देती है. Another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuit. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device
It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point, for example aluminium, copper, iron, lead etc. मीन्स जो, और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जो ये जूल हीटिंग का, वो कौन सा है, फ्यूज, जो हमारे घरों में लगा रहता है। आजकल ये फ्यूज तो कोई नहीं लगाता, सब एमसीबी लगाते हैं। तो पहले इसका यूज किया जाता था। इसका यूज कहाँ पे होता था, इनको सीरीज में कनेक्ट करते थे। जो हम कनेक्शन आता है घर में उससे सीरीज में कनेक्ट करते थे, ताकि जब जैसे कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ज़्यादा लोड आ जाता है तो ये गर्म होने की वजह से पिघल जाता था और ये कनेक्शन को कट कर देता था, पिघल जाता था और इसमें वायर कट हो जाता था और ये कनेक्शन को कट कर देता था, जिससे कि हमारे जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो ख़राब होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता है, ये मेटल का बना होता है और कोई एलॉय होता है, मतलब एलॉय वो चीज़ है जिसमें दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, उसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है। If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. मीन्स क्या होता है, जब स्पेसिफाई जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है और फ्यूज गर्म होने की वजह से वो जो फ्यूज वायर है वो पिघल जाता है, टूट जाता है और वो सर्किट को तोड़ देता है। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड in a cartridge of propylene and or similar material with metal ends. The fuse used for domestic purpose are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 और 10 ampere etc. जो हमारे घरों में फ्यूज लगाया जाता है उनकी जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, और इसी तरह की रेटिंग होती है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 volts, a current of 100 divided by 220 volt means ampere, that is 4.54 ampere will flow in the circuit. In case of a 5 ampere fuse must be used. जो इसका मतलब क्या कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक या आयरन यूज की जाती है वो कितने की, उसकी पावर जो होती है वो 1000 वॉट के करीब होती है, और वो जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है वो आती है 220 वोल्ट्स की। तो अगर हम इससे करंट की वैल्यू निकालें तो पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 220 एम्पियर। तो ये लगभग 4.54 एम्पियर के इक्वल होती है। मीन्स उस वायर में करंट कितनी फ्लो होगी जिससे हम आयरन को कनेक्ट करेंगे, उसमें लगभग 4.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो इसके लिए हम कौन सा फ्यूज यूज में लेंगे, 5 एम्पियर जिस पे रेटिंग होगी वो वाला फ्यूज हम यूज में लेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेटिंग ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जो वर्किंग रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मीन्स जो हमारी कार्य करने की क्षमता जो रहती है, वर्क करने की कैपेबिलिटी जो रहती है उसको पावर बोलते हैं। दिस इज आल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और इसी को कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की रेट बोला जाता है। इक्वेशन 12.21 यूज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। द टर्म P इज गिवन बाई P इज इक्वल टू VI। जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, वो वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई के इक्वल के बराबर रहती है। अगर मैं यहाँ पे V इक्वल टू IR रख दूँ तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी, I²R, और मैं अगर I की जगह V अपॉन R रख दूँ तो पावर इक्वल हो जाएगी V² डिवाइडेड बाई R। द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। It is the power consumed a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Thus 1 watt equal to 1 volt into ampere. 1. The unit was watt is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt. It is equal to 1000 watt
Since electric energy is the product of power and time, the unit of electric energy is therefore watt hour. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour, commonly known as unit. मीन्स क्या है, जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। पर वॉट एक बहुत छोटी यूनिट है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, किलो वॉट यूज करते हैं, जो कि कितने के इक्वल होती है, वो 1000 वॉट के इक्वल के, मतलब 1000 वॉट के इक्वल रहती है, ठीक है। और अगर हम इसको 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, मीन्स जो कि हम मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं उसमें यूनिट लिखी आती है, तो वो यूनिट इस 1 किलोवाट इंटू 1 आवर के इक्वल रहती है। 1 किलोवाट इंटू आवर कितना हो गया, इसकी वैल्यू जो आएगी 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मीन्स जो 1 यूनिट होती है उसमें अगर हम उसको जूल में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसकी वैल्यू होगी। इस पर हम बेस्ड एग्जांपल देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। हमें पता था कि पावर की जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू VI। अब हमें यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है और I की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पावर पूछा है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर की हो जाएगी 220 वोल्टेज है और 0.5 एम्पियर, मीन्स हो जाएगी 110 वॉट, ठीक है। ये हो जाएगी कोई इसकी वैल्यू हो जाएगी पावर की। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट और मीन्स जो एक यूनिट की प्राइस है वो है ₹3 है, और तो एक महीने में कितना बिल उसका आएगा वो पूछ रहा है, जिस एक रेफ्रिजरेटर को चलाने पर एक दिन में कितना चल रहा है, 8 आवर्स चल रहा है वो एक दिन में, तो एक दिन में इतने आवर्स चल रहा है, तो पावर उसकी है 400 वॉट। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है जो उसमें निकालते हैं वो होती है 1 किलोवाट इंटू घंटा, इसके इक्वल रहती है, ठीक है। अब ये है 400 वॉट का है, 8 घंटे चल रहा है, तो पहले हम 8 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू 60 मीन्स 36 इंटू 8 ये हो गया था, है ना। और इसको अगर हम डायरेक्ट यूनिट में कन्वर्ट करें तो इंटू 400, और इसको ही अगर हम एक महीने का बिल में कन्वर्ट करें तो इंटू 30, तो ये हो जाएगा कि अगर मैं बात करूँ 4 इंटू 4 तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, जो टोटल यूनिट आएगी वो आएगी 96 यूनिट आएगी, और उसकी 96 यूनिट की जो बिल आएगा 96 यूनिट्स का वो कितना आएगा, ₹3 के अकॉर्डिंग, ₹3 पर यूनिट के अकॉर्डिंग 288 रुपीज़ उसका बिल आएगा। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। सो कीप वॉचिंग, सपोर्ट, थैंक्स फॉर वेरी मच, थैंक यू।
for watching. Thank you very much.